Our today topic name is coordinate geometry, and this chapter is in class 9th. And this is the only chapter in class 9 where every student score full marks, because this is one of the easiest chapter of 9th standard. So what we will do in this chapter, this video, we will talk about what is the meaning of coordinate axis. ये हमारा पहला point होगा. Then I will talk about what is the meaning of quadrants, and the last we will simplify or solve all exercise questions. So let me start with. Now, before I start the chapter, let me have some general talk. If I ask you what is how to find position on a number line और position in a plane, plane जो होता है ना, वो मैं मीनिंग बताता हूँ. प्लेन फ्लैट सरफेस को कहते हैं. जो हम रूम का जो फ्लोर है वो प्लेन सरफेस होता है. पहले नंबर लाइन की बात करते हैं. देखिए, देयर आर 4 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए नंबर लाइन, right? If I ask you what is the position of Pinky, तो you will simply answer that Pinky is second from left side. ये हमारा जो है लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो लेफ्ट माना जाता है, और ये राइट. तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन सेकंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इज सफिशिएंट to tell the exact position of Pinky. But what about in a case of class in a plane surface? There is a class. If I ask you what is the position of Rajat, will this statement will be complete? The answer is no. Now to tell exact position of Rajat, we need one vertical line and one horizontal line. If I say what about vertical line, मेरा जो meaning है vertical line का वो है column. The vertical line is known as column and the horizontal line is known as row. So what is the position of Rajat? Position of Rajat is in the second row. So Rajat position is row B and the column is second column. Where these two meet, that is the exact position of Rajat. So from this one thing is clear कि to tell address of any point in plane, we need two information. One row position and second is column position. Let me take few more example to make it clear. ये आप day to day life में बहुत देखते हैं. देखिए, now the question is, if I talk about next is seating arrangement in aeroplane. I hope आपने टिकट पे देखा होगा, और seating arrangement in cinema hall. If I talk about what is the seating arrangement, what is the address of this seat in cinema hall? So this is in the row C. So I will write C first, and this is in the column 3. So I will write C3. So C3 is the address of the seat, and it is definitely आपने printed होता है आपका टिकट पे. Same in case of aeroplane seating arrangement. Now we are having the vertical and we are having the horizontal one. So by combining vertical and horizontal line, we can tell exact any seat address, which we have done in cinema hall. So this we are doing, but this is a chapter in our syllabus. Let me take two more example all. So here I hope you are all agree with me कि भाई if this is a chess and somebody ask me chess जो what is the address of this अगर ये move है तो what is the address? So first I will refer to the horizontal line one, mean this is a D, right? And then I will go to the vertical line and this is 5. So D5 is the address of this cell. If I talk about what is the address of this cell, if I let me talk about now in this case, what I will do, I will refer to the column is C. This is the C, and what is row is 6. So this is the way to write the address. Same in mobile phone. If I ask you what is the Facebook address, we touch na. So Facebook address will be here. What is the column here? Column is 1, and what is the row here? D. So I can write D1. So from these 4 examples, it is clear that we need 2 information to tell exact address of any object in plane surface.
टू ऑब्जेक्ट मीन कि एक आपको रो चाहिए, एक आपको कॉलम चाहिए. नाउ दीज टू ऑब्जेक्ट और टू इंफॉर्मेशन इन मैथ्स इज नोन एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. लेट मी टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस. देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट? और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस बोलते हैं. एंड वेयर these are the perpendicular line, please make sure ये 90 डिग्री एंगल है. एंड वेयर these two line meet, that is called origin. और ये जो ओरिजिन है इसके जो वर्टेक्स है ना, कोऑर्डिनेट, वो 0/0 होता है. अब मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा. कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट होता है एक पॉइंट का एड्रेस और वो ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स और वाई की वैल्यू. एक जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक एक्स पेयर होता है जिसमें एक्स की वैल्यू पहले आती है. प्लीज मेक श्योर एक्स हमेशा पहले आएगा, देन आई विल राइट वाई वैल्यू. तो एक्स और वाई को कंबाइन करके जो बनता है वो एक कोऑर्डिनेट बनता है. अब x को सेपरेटली हम एब्सिसा बोलते हैं और y को जो अलग है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट. देखिए, देख डिफरेंस है कोऑर्डिनेट में और ऑर्डिनेट में, डिफरेंस है. इन क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स से सर इज द सेम थिंग और डिफरेंट. नो, इट इज डिफरेंट. y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं. एग्जाम्पल से समझाता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं भी a का कोऑर्डिनेट बताइए, तो x और y की वैल्यू हमसे पूछा है, तो सबसे पहले x एक्सिस की तरफ जाएंगे. x एक्सिस की तरफ गए तो इट इज 4, तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया. फिर हम जाएंगे y एक्सिस की तरफ. y एक्सिस की तरफ गए तो वैल्यू इज 3, तो ये 3 वैल्यू आ गई. तो यहां पे x की वैल्यू जो है ना अब्सिसा, वो है 4 और जो y की वैल्यू है ऑर्डिनेट वो है 3. तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बनता है. एग्री? एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में. क्वेश्चन आया था राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट. तो मैक्सिमम स्टूडेंट सेड कि सर ऑर्डिनेट सुना ही नहीं, कोऑर्डिनेट सुना था. बट आंसर इसका क्या है? अब्सिसा अगर आपसे पूछा है तो यहां पे अब्सिसा 7 है और आपसे ऑर्डिनेट अगर पूछा है सो ऑर्डिनेट यहां पे हो जाएगा 5. आई होप. और इन दोनों को कंबाइन में कर देता हूं, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. और ये आपको याद में रखना है कि भाई x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं फिर y. ठीक है ना. वन मोर थिंग, जनरली बच्चे सोचते हैं 7/5, 7,5 और 5,7 सेम होते हैं. आंसर बिल्कुल नहीं, सेम नहीं होते हैं. एक और लेता हूं मैं. देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया है कि भाई जो ओरिजिन है उसकी जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट की वो 0,0 होती है. और ये नंबर लाइन की तरह ही तो है जो एक्स एक्सिस है, यानी कि नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है और यहां आप जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है. सिमिलरली वर्टिकल नंबर लाइन में ऊपर आप जाओगे एक्स एक्सिस की तरफ तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है और नीचे जब जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आती है. अब जो बार बार मैं एक्सिस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो जो प्लूरल है ना एक्सिस का वो AXES होता है. जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये सेम है कि डिफरेंट है. दिस इज द प्लूरल. और आपने नोट किया दीज टू एक्सिस डिवाइड ए प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से 4 पार्ट है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है. 4 में 2 जो लाइनें हैं वो किसी भी प्लेन सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं. अब इन चारों पार्ट का नेमिंग पढ़ेंगे हम, ये होते क्या हैं. इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं. तो मैं पहले क्वाड्रेंट समझाता हूं, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है. सो लेट मी स्टार्ट. सो अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कि 2 लाइंस व्हेन डिवाइड ए प्लेन सरफेस इनटू 4 पार्ट. ये क्वाड्रेंट 1 है. क्वाड्रेंट 1 जो है वो यहां से शुरू होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पॉजिटिव वैल्यू और ये जो वाई एक्सिस है इस वैल्यू तक, ये क्वाड्रेंट 1 है. फिर यहां से लेके और यहां तक ये जो एरिया है ये क्वाड्रेंट 2 कहलाता है, राइट. और क्वाड्रेंट 3 जो है ये कहलाता है, ये एक्स डैश ले लेता हूं. अगर ये एक्स है तो ये एक्स डैश ले लेता हूं, ये वाई है तो ये वाई डैश ले लेता हूं. तो एक्स डैश और वाई डैश के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट 3. और वाई डैश और एक्स एक्सिस के यानी कि एक्स के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं. अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है ना उसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव. देखिए हम करके देखते हैं. a का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं. a को सबसे पहले मैं x की तरफ गया तो मैंने देखा 7 है. फिर a को मैंने देखा 3 की तरफ, y की तरफ गया तो 3. ये x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है. ये दोनों पॉजिटिव हैं. तो आपने नोट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं.
बी में लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू रखने के लिए गया तो ये -5 आई, यहां पे मैंने -5 लिखा। फिर मैं वाई एक्सिस की तरफ गया तो वाई एक्सिस की पे वैल्यू आई -2 तो आपने नोट किया मैंने क्या लिखा है कि x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है और y की वैल्यू हमेशा यहां पे पॉजिटिव आएगी। तो ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप है एक्स की एक्सिस की तरफ मैं गया, एक्स की वैल्यू मैंने ढूंढी तो एक्स की वैल्यू -4 है, मैंने यहां पे -4 लिखा। फिर मैंने वाई एक्सिस की तरफ करा तो वाई एक्सिस की तरफ -5। देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, तो एनी कोऑर्डिनेट जिसके दोनों नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो डी की हम ऊपर गए तो डी की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ गए तो 4 है, और डी की वाई एक्सिस की तरफ गए तो वाई एक्सिस की तरफ -3 है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। फिर जनरली पूछते हैं कि सर अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो वो क्या क्वाड्रेंट में होगा? नहीं, वो हम कहेंगे क्वाड्रेंट नहीं, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे। फिर इनका कोऑर्डिनेट, तो आप ये बताइए एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2 है। फिर वाई बताइए, तो वाई एक्सिस की तरफ गए तो वाई की वैल्यू तो यहां 0 है, तो ये 2,0 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाई एक्सिस पे वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल यहां इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है मैं कहां पे जाऊंगा? एक्स की तरफ गया, तो मैंने एक्स की तरफ जाके देखा तो एक्स की वैल्यू तो 0 आई, तो ये मैंने 0 लिख दिया। फिर मैंने वाई की वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू 6 आई। सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर कि एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो वाई की वैल्यू 0 आती है, और एक्स वाई एक्सिस पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 आती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो मैंने यहां तक क्या बताया? मैंने क्वाड्रेंट बताया। क्या क्वाड्रेंट है भाई? फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, ये मैंने बताया, दोनों वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स होगा पॉजिटिव और वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जनरली पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि टेल कि भाई -8 और -9 कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? तो आप झट से कहोगे सर दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसको और इलाबरेट करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाई राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने एक्सरसाइज 3.1 नहीं करी, 3.1 है उसमें 2 ही क्वेश्चन है। आई होप यू विल डू योर ओन। मैं इजी है वो होमवर्क मैं आपको लिख देता हूं। 3.2 से स्टार्ट करता हूं, ये एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम पूछ रहे हैं, तो आप आई होप मैंने अभी डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका नाम होता है एक्स एक्सिस, तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स एक्सिस, ओके। फिर इसने पूछा वर्टिकल लाइन, सो वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है वो होती है वाई एक्सिस, तो मैंने आंसर लिखा वाई एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर। पहले आप खुद कर लीजिए, देन मेरे आंसर से मैच करिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। ये कह रहा है कि भाई ये जो पार्ट बने हैं ना जिसमें डिवाइड करें, इनका नामिंग बताओ, तो इनका नाम होता है क्वाड्रेंट्स, तो इस 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आई होप ये आ गया। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये पहली लाइन और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट का हमें नेम पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं ओरिजिन। और एक और मैं नई चीज लिख देता हूं इसके साथ में, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो 0,0 होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि इस फिगर को देख के बी के कोऑर्डिनेट लिखिए, तो बी कहां पे है? देखिए ये रहा बी। ये कई बार ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। तो कैसे लिखेंगे? बी में सबसे पहले एक्स की तरफ जाइए। जब मैं एक्स की तरफ गया तो -5 आया, सो मैंने -5 लिखा। फिर मैं वाई की तरफ गया, मैं वाई की तरफ गया तो वाई की वैल्यू है +2, सो आई राइट दिस।
ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सी पूछा है तो सी ढूंढते हैं कहां पे होगा, सी यहां पे है, तो सी में सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे, तो एक्स की तरफ गए हम, एक्स एक्स की तरफ, तो वैल्यू आई 5, सो मैंने यहां 5 लिख दिया। और मैं फिर वाई एक्सिस की तरफ इसको करा तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू आई अगेन 5, सो ये 5,5 हो गया। अब हमसे कहता है पॉइंट बताइए जो -3 और -5 पे है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो -3 तो ये रहा, ठीक है, और -5 ये रहा। तो जब ये दोनों पॉइंट मैंने मैच कराए तो ये जो पॉइंट बना ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ये ई पॉइंट है, सो ई पॉइंट जो होगा वो -3, -5 होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट पहले मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले खुद कर लीजिए फिर आंसर चेक करिए मेरे साथ। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, इसका पूछा है, 2 तो प्लस का है तो 2 तो ये है, और माइनस का 4 है, माइनस का 4 ये है, तो ये पॉइंट हमें पूछ रहा है और ये पॉइंट जी पॉइंट है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ये जी पॉइंट है। एब्सिसा, देखिए इंटरेस्टिंग चीज, एब्सिसा पूछ रहा है यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट की पहले लिख लेता हूं। डी की जो हमें कोऑर्डिनेट लिखा वो हो गया 6 और इसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई लिखा ये हो गया 2, तो एब्सिसा तो एक्स होता है, इसका आंसर मैंने लिख दिया 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच तो ये रहा, पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट में एक्स की तरफ गए तो एक्स की तरफ की वैल्यू है -5, फिर मैंने वाई की तरफ गया -3 है, तो वाई हमसे पूछा ऑर्डिनेट तो वाई को ही कहते हैं ना, तो यहां पे आंसर हो जाएगा -3। अब एल का पूछा है हमें, एल ढूंढते हैं कहां पे है, देखिए एल यहां पे है, एल लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू ढूंढा मैंने, एक्स की वैल्यू तो यहां पे 0 आ रही है और वाई की वैल्यू यहां 5 आई है, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 0,5। अब एम ढूंढते हैं, सो एम की वैल्यू ये रही, एम अगेन लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ये -3 है यहां पे, तो मैंने यहां पे -3 लिख दिया। फिर वाई की तरफ गए हम, तो वाई की वैल्यू देखिए तो यहां पे 0 है, तो यानी कि वैसे भी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये काफी इजी चैप्टर है। अब लास्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं और ये उससे भी इजी है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि भाई इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं, पहले बात तो हमें ये बताना है। फिर कहता है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम इन द कार्टेशियन प्लेन। एक नई चीज है कार्टेशियन प्लेन, देखिए द प्लेन वेयर वी रिप्रेजेंट एक्स वाई, उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी प्लेन होती है, आपको आर्गेंट प्लेन ले आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, तो कार्टेशियन प्लेन होती है वेयर वी राइट एक्स और वाई वैल्यू। स्टार्ट करते हैं, -2,4, देखिए -2 एक्स की वैल्यू, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, पहले हमेशा एक्स ही होता है फिर वाई, तो -2 तो ये रहा, और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 है, तो यहां पे मैं -2 पे लेके गया और y की वैल्यू है, तो ये मेरा पहला जो पॉइंट है इसको मैं a ले लेता हूं, और a जो है ये हो गया -2 और 4, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको एक चीज मैं बताऊं कि हमेशा क्वाड्रेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट लेते हैं x3 और y1, तो x3 तो ये रहा और y की वैल्यू ये रही, यानी कि ये दोनों पॉइंट जब मिलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको मैं b ले लेता हूं, ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको क्वाड्रेंट भी लिखना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां पहला जो पॉइंट आया था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया था। फिर है -1,0, -1 x की वैल्यू ये रही और 0 y की वैल्यू 0, ये खुद ही होगा, ये सी पॉइंट जो है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्वाड्रेंट नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, राइट, देयर इज नो क्वाड्रेंट। फिर ये 1,2 पूछा है, तो 1 तो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये 2 है, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 1,2 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूं डी पॉइंट, सो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर लास्ट पूछा है -3, -5, तो -3 जो है वो हमारा ये x की वैल्यू है और -5 है ये हमारी y की वैल्यू है। ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट नाम दे लेता हूं E, और ये है -3 और -5। दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। आई होप दोनों पार्ट हमने कर लिए, क्वाड्रेंट भी मैंने मेंशन कर दिया और इनको प्लॉट भी कर दिया क्रॉस चेक करने के लिए।
Now we will do the last question of our video, that is question number 2. और ये कई बार पूछा जाता है, इजी है, तो इसको मैं समझा देता हूं ठीक से. क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई प्लॉट द पॉइंट्स इन गिवन टेबल. हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, राइट. ये -2 और 8 प्लॉट करना है. और -2 देखते हैं, -2 का मतलब x की वैल्यू -2, राइट. ये मैंने ऊपर ले लिया और ये ऊपर लेके गया. और 8 जो है ये मैंने यहां पे लिया. मैं ऊपर क्यों लेके गया हूं? क्योंकि भाई -x और 8 पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है. ये ए पॉइंट मैंने माना है -2,8. अब इसकी बात करते हैं. -1,7. -1 तो ये रहा और प्लस का 7 पूछ रहा है, तो इसको वापस लेके जाएंगे. y पॉजिटिव तो ऊपर ही होता है, y पॉजिटिव गए, तो ये जो पॉइंट आया मेरा, ये हो गया माइनस. इसको पॉइंट को मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं. -1 है और 7 है, और इस पॉइंट को मैंने b नाम दे दिया. इसको मैं b ले लेता हूं, इसको मैंने a लिया था. देखिए x की वैल्यू 0 है और ये -1.25. x की 0 -1, देखो -1 और -2 y की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में 1.25 है, वो यहां होगा. ये जो पॉइंट है इसको मैं लिख देता हूं. ये पॉइंट हो जाएगा कि माइनस की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट को 0,-1.25, और मैं इसको सी पॉइंट मान लेता हूं, राइट. नेक्स्ट ये डी पॉइंट को प्लॉट करते हैं. x1 तो ये रहा और y3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इसको मैंने डी पॉइंट मान लिया 1,3. कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. x3 और y1, देखिए x3 ये है और y1 यहां पे है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारा कहलाएगा, मैं इसको e पॉइंट मान लेता हूं. x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज अ इजी चैप्टर. अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूं. विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर और थैंक यू वेरी मच.